أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام تعریفیں ہر قسم کی عزت و جلال اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سامان ہی، جس نے ہم تمام کو کسی جانوروں میں، کسی پرندوں میں، درندوں میں، حیوانات میں، جنات میں پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں میں پیدا کیا. ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ نیکی کرے، کچھ اس کی فرما برداری کرے تھے، کچھ دعائیں کرے تھے پیدا ہونے سے پہلے. اے اللہ ہم کو انسان میں پیدا کر بول کر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے رحم و کرم سے ہم تمام کی پیدائش انسانوں میں کیا. اتنا ہی نہیں، پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. تو میرے محترم دوستو، الحمدللہ ابھی ہم تمام ماہ رمضان سے گزر چکے ہیں. ماہ رمضان کے یہ روزے، یہ عبادت، یہ تراویح، یہ تمام پرہیزگاری اللہ تعالیٰ یہ ہر سال میں ایک مہینہ، 12 مہینوں میں ایک مہینے کا انتظام کیوں کیا؟ یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ واضح طور سے ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کیا ہو، جس کے اندر واضح طور سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والے بن جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان، یہ روزے اس لیے فرض کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتا ہے، یعنی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا بنانا چاہتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کس طریقے سے ڈرے، اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا انسان میں، تو جیسا کہ میں دوسری آیت تلاوت کر چکا ہوں آپ لوگوں کے آگے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب آدمی تقوی والا بن جاتا ہے. جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، تو دین اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پہاڑ جیسا عمل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میرے محترم دوستو، ایک ٹریننگ کیمپ تھی ماہ رمضان، ایک ٹریننگ کیمپ، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجدار، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، اما عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا. ہم لوگ ماہ رمضان میں یہ حدیث سن چکے ہوں گے، پھر سے میں آپ لوگوں کو یاد دلوا رہا ہوں. کیا فرمائے؟ کچھ روزے دار ایسے ہی ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کچھ روزے دار ایسے ہی ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نہ نیکیاں حاصل ہوں گے، نہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. صرف بھوک اور پیاس. شام تک بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، پھر کھجور کھا لیں گے، سمجھیں گے کہ ہم روزہ رکھتے ہی روزہ افطار کر لیے. نہیں میرے محترم دوستو، وہ جو بھوک اور پیاس کے سوا جن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ روزہ دار وہی کہ وہ لوگ جس طریقے سے 11 مہینے گزار دیے، جھوٹ بولتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، رشتہ داروں کے محبت
फरमाया, उनको कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये महीना ट्रेनिंग कैंप है, एक ट्रेनिंग देने वाला महीना हमसे गुजर चुका है। हम रोजा रखते रखते हम में से अक्सर भाई झूठ से बच जाते हैं, गिबत से बच जाते हैं, गुनाहों से बच जाते हैं। इसी तरह सारी जिंदगी भर हम अल्लाह के नाफरमानियों से बचते रहा करें, शैतान के धोखे में आने से बचते रहा करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात आपको खुले अंदाज में समझ में आने के लिए आप लोगों के आगे एक पुरानी वाक़िया रखकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। गौर से समाप्त फरमाइए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे का वाक़िया है। कोई वो कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं, कोई सियासतदान नहीं, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बच्चा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इबरतनाक वाक़िया है, पुरानी वाक़िया है। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला जिसका जिक्र कर रहा है, खंदक वालों के नाम से अल्लाह ताला वो बच्चे को, अब उस बच्चे के हाथ पर जितने भी लोग इस्लाम कबूल किए, उस बच्चे का वाक़िया देखकर, उस बच्चे की कुर्बानियां देखकर, उस बच्चे के तहमे को देखकर जितने लोग इस्लाम कबूल किए, एक अल्लाह को मानने वाले बन गए, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला सूरह बुरूज में खंदक वालों के नाम से याद कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़ाकर मुसल्लियों की तरफ पलट कर बैठे थे। होठ हिल रहे थे मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। होठ हिल रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। असहाब अकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आपके तो होठ हिल रहे ही, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगले जमाने में एक बादशाह गुजर चुका है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? ऐ लोगों, अगले जमाने में एक बादशाह गुजर चुका है, जालिम बादशाह। उस वाक़े से अंदाजा यह हो रहा है कि वो जालिम बादशाह, उसकी रियासत में जितने भी लोग रहते हैं, उसकी सियासत में, उसकी रियासत में, उसके मातहत उसकी हुकूमत जितने दूर तक होती है, उतने दूर तक जितने भी लोग होते हैं, उन तमाम लोगों पर यह कानून जारी कर दिया कि ऐ लोगों, मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात मेरे मोहतरम दोस्तों। एक इंसान, एक गुनहगार कह रहा है कि मैं अल्लाह हूं, कैसा कहता है, मेरी ही इबादत किया करे, मेरे ही लिए तुम्हारे सदका, तुम्हारे खैरात, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा सजदा मेरे आगे किया करो। एक बादशाह, जालिम बादशाह। अगर इस तरीके से ना करेंगे तुम्हारी खैर नहीं होगी, वार्निंग दे रहा है। इस तरीके से वो अपना कानून पास कर चुका था उसकी हुकूमत में। अल्लाहु अकबर। ऐ लोग उससे डरते हुए उसकी इबादत करने लग गए। मगर कुछ भाई, कुछ बहन छुप छुप कर एक अल्लाह की इबादत ही कर रहे थे, एक अल्लाह के तहकीक में, उसको पहचानने में लगे हुए थे। अंदाजा हो रहा है उस वाक़े से। उस बादशाह के पास एक वजीर था, जादूगर था। वो जादूगर कहने लगा, ऐ बादशाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अभी मेरी जादूगरी काम नहीं करती, मैं दुनिया से चले जा सकता हूं चंद दिनों में, अंदाजा हो रहा है। तो तुम एक बच्चे को मुझे हवाला करो, क्योंकि उसकी जादूगरी से लोगों को धोखा कर रहा था, क्योंकि उसकी जादूगरी से जादू करवा कर वो कह रहा था कि देखो मैं खुदा हूं, देखो किस तरीके से नए नए काम जो नहीं हो सकते वो मैं करवा रहा हूं, मैं खुदा नहीं तो और कौन है, मैं अल्लाह नहीं तो और कौन है। इस तरीके से लोगों को यकीन दिलवा रहा था। उस वाक़े से अंदाजा हो रहा है। वो जादूगर ने कहा, एक दानिशमंद, एक होशियार बच्चे को मुझे हवाला करो, मैं अपनी जादूगरी पूरी उसको सिखा दूंगा, फिर मैं दुनिया से जाने के बाद फिर वो बच्चा आप लोगों को काम आ जाएगा। बादशाह से कहा। बादशाह पूरी हुकूमत में तलाश करके एक बच्चे को हवाला कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा, उस बच्चे को हुक्म दे दिया बादशाह, उस बच्चे के वालिदैन को हुक्म दे दिया कि बच्चा हर दिन जादूगर के पास जाकर जादू सीख कर आते रहना। वो बच्चा हर दिन आया करता था, जादू सीख रहा था,
मगर रास्ते में एक अल्लाह वाला, एक इबादत गुजार, अल्लाह ताला से सही मानों में डरने वाला एक राहिब। आज के दिन हम क्या कहते हैं? मौलवी साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं, मौलाना कहते हैं आज के आलिम को, मगर उस जमाने में राहिब कहते थे। अल्लाह ताला से सही मानों में डरने वाले साहब का मकाम था रास्ते में। जादू सीखने जा रहा था, फिर यहां पर ठहर कर ये क्या कह रहे हैं ये भी सीख रहा था। घर जा रहा था, घर देर जा रहा था, घर वाले मारपीट करते थे, इतना देर कहां रहा? जादूगर के पास जाना, जादू सीख कर फौरन ये टाइम तक तो आ जाना। एक आधा घंटा देर से आया, घंटा देर से आया, इस तरीके से घर में भी उसको सजा मिल रही थी। जादूगर भी डांटता था, कभी कभी जादूगर के पास जाते जाते भी वहां पर बैठकर जा रहा था, सीख रहा था ये क्या कह रहे हैं। ये एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, हकीकी माबूद की तरफ बुला रहे थे, उस रज़्ज़ाक़ की तरफ जिसके हाथ में ही सब कुछ है, जिसके बगैर, जिसकी इजाजत के बगैर एक मच्छर भी, एक मक्खी भी अपनी फर पर हिला नहीं सकती। सारे कायनात का परवरदिगार, पालनहार, उसकी दावत दे रहे थे वो राहिब। मेरे मोहतरम दोस्तों, जादूगरी भी सीख रहा था, फिर यहां भी इल्म हासिल कर रहा था वो बच्चा। अचानक अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन जादूगर के पास जा रहा था वो बच्चा, तो अचानक एक चौरास्ते में, एक सेंटर में एक भयानक जानवर आकर बैठ गया है। अल्लाहू अकबर। एक भयानक जानवर आकर बैठ गया है, उसको बड़ी से बड़ी ताकत वाला भी उसके करीब तक नहीं जा सकता है, उसको हिटा नहीं सकता है, उसको हटाल नहीं सकता है, उसके करीब तक भी जा नहीं सकता है। पूरी ट्रैफिक जाम, उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर, पूरे रुक गए थे, पूरे लोगों के काम खराब। एक भयानक जानवर सेंटर में आकर बैठ गया है। अल्लाहू अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बच्चे ने सोचा एक बेहतरीन गोल्डन चांस है, ये बेहतरीन मौका है, मैं आज ही इम्तिहान कर लो। जो राहिब मुझे सिखा रहा है, इल्म दे रहा है, क्या वो सही है? राहिब एक अल्लाह की तरफ, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, राहिब वही मजहब, वही कानून, वो सच्चा कह रहा है, इधर जादूगर अपनी जादूगरी सिखा रहा है। अल्लाह ताला को, हकीकी माबूद को कौन सी चीज पसंद है, आज इम्तिहान कर लो। अल्लाहू अकबर। क्या बेहतरीन गोल्डन चांस, जिसके दिल में हकीकी तरफ हुआ करती है, जिसके दिल में हकीकी तरफ हुआ करती है, इसी तरीके के रास्ते अल्लाह ताला खोलता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसने सोचा कि आज भाई राहिब जो सिखा रहा है, अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है, उस अल्लाह का नाम लेकर एक छोटा सा पत्थर उस भयानक जानवर पर फेंक दो। अगर अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का दीन सच्चा है, तो जानवर खत्म हो जानी चाहिए। अगर अल्लाह सच्चा नहीं है, अल्लाह का दीन इस्लाम अगर सही नहीं है, तो फिर मैं जादूगर का नाम लेकर फिर उसके ऊपर पत्थर डालूंगा। यह सोचकर ये बच्चे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया। और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई भी जानवर के करीब तक नहीं जा सकता था। बड़े से बड़ा पहलवान भी, बड़े से बड़े रौड़ी किस्म के लोग भी वहां पर मौजूद थे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। इस बच्चे ने अल्लाह पर भरोसा रखकर हकीकी तरफ, यानी रिसर्च, रिसर्च किसको कहते हैं? तहकीक। वो हकीकी तरफ रखकर अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो इस छोटे से पत्थर से इस जानवर को खत्म कर दे। ये नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह कहकर वो पत्थर उठाकर जानवर पर फेंक दिया, तो जानवर उसी वक्त खत्म हो गया। अल्लाहू अकबर। तड़पते तड़पते खत्म हो गया, मर गया वो जानवर। अल्लाहू अकबर। पूरे लोग हैरान, वो परेशान, क्या बात है, क्या बात है, छोटा सा बच्चा, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर करीब तक नहीं जा सकते उस जानवर के करीब तक। इधर के लोग उधर जाम हो चुके थे, कई घंटों से कामों काज खराब हो गए ही हमारे। छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा, फिर कोई बड़ी हथियार भी यूज नहीं किया, कोई तलवार, कोई बड़ा सब्बल, कोई बड़ी लकड़ी भी नहीं, सिर्फ छोटा सा पत्थर मारा तो जानवर खत्म हो गया। ये बच्चे के पास कुछ हकीकत है। लोगों ने एक दूसरों को बोलने लगे, मालूम है ना, एक अजीब काम अगर हो गया तो फौरन बात बिजली की जैसा फैल जाती है।
पहुंचा। वो बच्चे को मालूम हो गया कि अल्लाह सच्चा है, दीन इस्लाम सही है, इसीलिए तो जानवर को अल्लाह ताला खत्म कर दिया, उसका नाम लेकर मैं मार रहा हूं। वो फौरन वो बच्चा राहिब के पास पहुंचा, उस्ताद के पास पहुंचा, कहा कि अरे उस्ताद इस तरीके का वाकया पेश आया है। उसने कहा अल्लाह ताला की नजर में मुझसे भी तू अफजल है, अल्लाह ताला की नजर में मेरे से भी तू ज्यादा पसंदीदा है अल्लाह ताला को। अब तेरे ऊपर तरह तरह के इम्तिहानात आएंगे, मेरे ताल्लुक से किसी को नहीं बताना, मेरा नाम बादशाह को नहीं बताना, तेरे ऊपर इम्तिहानात आएंगे, तू इस्तिकामत पर रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये नसीहत देकर लेकर वहां से वो बच्चा अपने घर पहुंच गया तो घर के पास लाइन लगी हुई है बीमारों की। अल्लाह अकबर। बीमार मुसीबत ज़दा लोग घर के पास आकर ठहरे हुए ही बच्चे से कहे हैं ही वो भयानक जहरीले जानवर को जो दुआ करके तू मार दिया है, उस तरीके की दुआ हमसे हमारे लिए भी कर। जमाने दराज के कोड़ के बीमारी, जमाने दराज के जुआनी लोग, अल्लाह अकबर। ये बच्चा अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से दुआ कर रहा है, शिफा मिल रही है, लोग तंदुरुस्त होकर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के दरिया में रोते लगाते हुए जा रहे हैं। बीमार जमाने दराज के कई दवाइयां इस्तेमाल कर करके कई लाखों रुपये खर्च कर थके हुए थे। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बादशाह के दरबार में एक वजीर था, जो बादशाह जालिम, जो बादशाह खुदाई दावा कर रहा था, जो बादशाह अपने आगे लोगों से सजदा करवाने रहा था। उस बादशाह के पास एक वजीर था मेरे मोहतरम दोस्तों। वो वजीर के कान में ये बात पहुंच गई कि एक बच्चा निकला है। वो बच्चे के पास जाकर जमाने दराज के लोग तंदुरुस्ती हासिल कर रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं, फ्री में कर रहा है, फ्री में। अल्लाह अकबर। फौरन वो वजीर निकला, बड़े बड़े तोहफे, कीमती तोहफे लेकर निकला मेरे मोहतरम दोस्तों। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, हमारे ईमान की मजबूती के लिए इस वाकया से बढ़कर और क्या वाकया होनी चाहिए। आज भी अगर तुम लोगों का ईमान मजबूत ना हुआ तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला यह मंजर याद दिलाएगा कि अतीकुर रहमान सूरह बुरूज का वाकया आप लोगों के आगे पेश किया था, क्या तुम अपना ईमान मजबूत क्यों नहीं किए? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वजीर के पास, बादशाह के पास जो जमाने दराज का अंधा खामोश अपने वहां पर बैठकर खा रहा था, पी रहा था, अपने जरूरियात पूरे कर रहा था, बादशाह के ताल्लुक से कुछ काम नहीं कर सकता था। उसके कान में जब यह बात पड़ी तो बड़े बड़े तोहफे लेकर बच्चे के खिदमत में पहुंचकर कहने लगा, अरे बच्चे, अगर तू मेरे आंखों में रोशनी दे दी तो कीमती तोहफे पूरे तेरे लिए कुर्बान करूंगा। देख क्या क्या तोहफे लेकर आया हो। अल्लाह अकबर। और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, एक अल्लाह वाले के अल्फाज क्या हुआ करते हैं, एक अल्लाह वाले का यकीन कैसा हुआ करता है, एक अल्लाह वाले तकवा परहेजगार के आदमी का अमल कैसा हुआ करता है। उस बच्चे ने कहा, अरे वजीर, अरे बादशाह के वजीर, अरे अंधे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहा हूं, तुम्हारे बीमारी के ताल्लुक से अल्लाह के आगे फरियाद पेश कर रहा हो। अरे अल्लाह, तू तंदुरुस्ती दे दे। तो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे रहा है। मैं कौन हो सकता तेरे आंखों में रोशनी देने के लिए? मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ मैं एक जरिया दुआ करने के। तेरे लिए भी दुआ करूंगा जरूर, मगर ये तोहफे मुझे जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। आज के दिन सिर्फ चंद दिरहम के लिए, चंद हजार रुपयों के लिए दीन इस्लाम में कई लोग तब्दीलियां लेकर आ जा रहे हैं। मस्जिद का सदर जो बना वही बयान कर रहे हैं। मस्जिद के सदर का अमल अगर उस पर नहीं है तो उस मौजूद पर बयान करने के लिए आपका खतीब आगे पीछे हो रहा है। मगर मेरे मोहतरम दोस्तों, उस बच्चे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, उसी से मैं दुआएं कर रहा हूं। वही आज तक तमाम लोगों को तंदुरुस्ती दिया है, तेरे लिए भी दुआ करूंगा, मगर मेरे तोहफे, तेरे तोहफे, एक छोटा सा तोहफा भी तेरा मुझे जरूरत नहीं है, मगर एक शर्त है, एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं जिस अल्लाह से दुआ कर रहा हूं उसका इस्लाम तू कबूल करना होगा, उसका दीन कबूल करना होगा, दीन इस्लाम में
तू दाखिल होना पड़ेगा, अगर तू ये जबान देगा तो मैं अभी दुआ करूंगा इसी शर्त पर, तेरा कोई तोहफा मुझे जरूरत नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, जिसको आंख नहीं है उसको पूछ कर देखिए उसकी तकलीफ क्या है, उसके आरज़ू तमन्नाएं क्या है। वो फौरन हाँ कह दिया, हाँ है बच्चे, अगर अल्लाह ही दे रहा है मेरे आंखों में रोशनी, कि मैं उस अल्लाह की इबादत करने में मैं पीछे क्यों हटूं, इस बादशाह से क्यों डरूं, हाँ मैं इस्लाम कबूल करूंगा। तो फौरन उस बच्चे ने दुआ की, अरे परवरदिगार, ये बादशाह का वजीर है, जमाने दराज से अंधा है, आंखों में रोशनी नहीं है, रोशनी के लिए तड़प रहा है, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लिया, वजीर के आंखों में रोशनी आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह का करना, अल्लाह का देन, अल्लाह की मदद कैसे हुआ करती है, गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों। फौरन वो वजीर खुशी के दरिया में होते लगाते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचकर जो सालों पहले कामों काज किया करता था उस तरीके से कामों काज करने लगा। तमाम लोग परेशान, बादशाह तक बात पहुंची, बादशाह परेशान, बादशाह अपना सवाल करने लगा, अरे वजीर तू कई सालों से अंधा था, तुझे रोशनी किसने दी, ये रोशनी कैसे आई, कई दवाएं इस्तेमाल किया, कई लोगों के पास, कई डॉक्टरों के पास फिरा तू, आखिरकार ये क्या माजरा है। उस वजीर ने कहा, मुझे अल्लाह ने रोशनी दी आंखों में। हाँ हाँ अल्लाह ने रोशनी दी, अल्लाह वही ही हूं ना, मैं ही तुझे रोशनी दिया ना। अल्लाह अकबर। फिर बादशाह ये कह रहा है वजीर से, हाँ अल्लाह वही हूं ना, मैं ही तेरे को रोशनी दिया ना, हाँ, और मेरी इबादत और करने लग जाए, मेरी शुक्रगुजारी और तू करने लग जाए। वजीर ने कहा, नहीं, तेरा और मेरा परवरदिगार, तुझे और मुझे जिसने पैदा किया, सारी दुनिया का पालनहार, ये आसमान जिसने पैदा किया, ये पहाड़ जिसने पैदा किया, तेरे बाप दादाओं को जिसने पैदा किया, मेरे बाप दादाओं को जिसने पैदा किया, उस अल्लाह ने मेरे आंखों में रोशनी दी। अल्लाह अकबर। उसने कहा, क्या मुझे छोड़कर किसी और को तू अल्लाह मान रहा है, खुदा मान रहा है? हाँ हाँ हाँ, इसका पालनहार तेरा और मेरा परवरदिगार जो है, मैं उसी की इबादत किया करता हूँ, उसी के ऊपर पूरे तौर से भरोसा रख रहा हूँ, उसी के दीन इस्लाम में मैंने दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। ये बात कहना ही है। उसको तरह तरह के वार्निंग देने लगा। फिर उस बच्चे का पता भी लगा लिया, उस राहत का पता भी लगा लिया उस बादशाह ने, तुझे ये इल्म कहां से हासिल हुआ, तो इतना गुनाह क्यों हो गया, उसकी नजर में गुनाह ही है। तो वो जो राहब है, जो उस्ताद है बच्चे का, उसका भी पता लगा लिया, उसको बुलाकर तरह तरह से वार्निंग देने लगा। अल्लाह अकबर। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे मोहतरम दोस्तों, 1000 मरतबा जान देने के लिए तैयार है जिसके दिल में यकीन आ जाए, जो एक अल्लाह को सही मानों में मान ले, तो 1000 मरतबा अल्लाह ताला अगर जिंदा किया तो 1000 मरतबा दीन इस्लाम के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज कर सकती है अंदाज़ दुरुस्ता पैदा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उस राहिब ने, उस उस्ताद ने बच्चे के उस्ताद ने मानने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे के आगे उस राहिब को सर के बीच में से आड़ा लेकर वो बादशाह काटते काटते 2 टुकड़े कर फेंक दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, सर के बीच से आड़ा लेकर पूरा काटते हुए 2 टुकड़े, दरमियान से 2 टुकड़े कर 2 तरफ फेंक दिया बच्चे के आगे। बच्चे से कहा, अरे बच्चे, अभी तो तू मुझे खुदा मान ले, वरना तेरा भी यही हाल होगा। उस बच्चे ने मानने के लिए तैयार नहीं था। तू कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा। वही अल्लाह है, वही माबूद है, वही राज़िकुर रहीम है, वही रहमानुर रहीम है। तो फौरन वजीरों को बुलवाया बादशाह, फौरन कहा, तमाम पहाड़ों में जो ऊंचा पहाड़ है उस पहाड़ पर ले जाना, पहाड़ के चोटी पर ले जाना, इसको समझाना, वार्निंग देना, मुझे खुदा मान ले बोलकर, अगर ना माना तो वहां से ढकेल दो, ऊंची पहाड़ी पर से नीचे ढकेल दो, ताकि वहां से गिरकर खत्म हो जाए, मर जाए, ये फितना मेरे से खत्म हो जाए। तो वजीर लेकर गए ऊंचे पहाड़ पर, कहा, देख बादशाह को खुदा मान ले, जिसको तू मान रहा है उसको छोड़ दे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं था। वहां से ऊंची पहाड़ी पर से ढकेलने की
कोशिश कर रहे थे, उसने दुआ किया उस बच्चे ने, अरे परवरदिगार जैसा भी चाहे मुझे बचा ले, इन लोगों को हिलाक कर दे। तो वो लोग धकेलने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़ हिला, पूरे के पूरे वजीर पहाड़ पर से नीचे गिरकर खत्म हो गए। वो अकेला तने तनहा बच्चा बच गया था, सही सलामती के साथ खुशी के दरिया में रोते लगाते हुए बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह हैरान हुआ, परेशान, क्या हो गया तेरे को, मेरे वजीर कहाँ है? बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, उस अल्लाह ने तेरे वजीरों को खत्म कर दिया। अल्लाहू अकबर। उसकी परेशानी और बढ़ गई। फिर एक राउंड टेबल समावेश रखा, वजीरों को बुलवाया, आखिरकार हम क्या करेंगे, आखिरकार हम क्या करेंगे? तो फिर वजीरों ने मशवरा दिया कि दरिया के बीच में पहुंचा दिया जाए, इसको दरिया के बीच में पहुंचा दिया जाए, वहां पर इसको नसीहत किया जाए। अगर नसीहत मान लिया, अगर बादशाह को अल्लाह मान लिया, खुदा मान लिया, तो उसको वहां से सही सलामती के साथ लाया जाए, वरना दरिया के बीच में उसको ढकेल लिया जाए। फिर उसी तरीके से वजीर लेकर गए, उसी तरीके से उस बच्चे ने दुआ की, अल्लाह ताला उस बच्चे को बचा लिया। सारे वजीर दरिया में गिरकर खत्म हो गए। फिर वो बच्चा बादशाह के दरबार में आया, बादशाह परेशान, फिर से मीटिंग रखा वजीरों को बुलाकर, तमाम वजीर ये कहे कि मैंने मशवरा रखा, तो उस बच्चे ने कहा, तुम लाख कोशिशें करो मुझे मार नहीं सकते, मगर जो तरकीब मैं बताता हूं वो तरकीब अगर तुम इख्तियार करेंगे तो सिर्फ एक ही कोशिश में मैं खत्म हो जाऊंगा। बच्चे ने सोचा कि मैं रहा या ना रहा, हर इंसान मरने के लिए ही पैदा हुआ है, मैं दिन इस्लाम के लिए खत्म हो जाऊं, मगर दिन इस्लाम लोगों में फैल जाए, आतिश जहन्नम से लोग बच जाए, जन्नत के हकदार बन जाए, यह सोचकर उस बच्चे ने कहा, और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, उस बच्चे ने कहा, सारे के सारे तेरी रियासत में जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को एक बहुत बड़े मैदान में जमा कर दे, वहां पर एक सूली का इंतजाम करना, सूली का ताकत जो होता है इंतजाम कर देना, मेरे जेब में जो तीर हुआ करती है, उस तीर को निकाल कर अल्लाह का नाम लेकर, जिस अल्लाह को मैं मान रहा हूं, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात को पैदा किया है, उस अल्लाह का नाम लेकर ये तीर अगर तू छोड़ दिया तो वो तीर मुझे लगेगी मैं खत्म हो जाऊंगा। वो बादशाह को वही होना चाहिए था, क्योंकि कई लोग डाउट में पड़ गए, ये बादशाह झूठा है बोलकर, ये बादशाह धोखेबाज है, लोगों में डाउट पैदा हो गया, तो फौरन वो इंतजाम कर दिया। तो बड़े से बड़े मैदान में सारी हुकूमत में जितने भी लोग हैं तमाम को जमा किया और सूली पर चढ़ा दिया इस बच्चे को। बच्चे की जेब से जैसा बच्चे ने कहा, तीर निकाल कर अल्लाह का नाम लेकर, तमाम लोग सुने जैसा तीर छोड़ दिया, बच्चे के कनफट्टी पर तीर लग गई, बच्चा वहीं पर खत्म हो गया। जैसे खत्म हुआ, एक इनकलाब चालू हो गया लोगों में, ये बादशाह झूठा है, धोखेबाज है। आज तक हम इस बादशाह को सजदे किया करते थे, इबादत इस बादशाह की किया करते थे, ये तमाम नाहक है, ये झूठ है, ये धोखा है। हम भी उसी अल्लाह को मानेंगे, उसी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे जो बच्चा आज तक अमल करते करते इस दुनिया से चला है। तो तमाम लोगों में इनकलाब चालू हो गया, परेशान। फिर बादशाह ने फिर मीटिंग रखा, लोगों ने कहा, उसके वजीरों ने कहा, बड़े बड़े सेंटरों में बड़े बड़े खंदक खोद दिया जाए, जिसके अंदर दहकती हुई आग लगा दिया जाए, जो लोग दीन इस्लाम पर अमल करूंगा बोलकर हर दिल्ली से रह जाएंगे, अल्लाह को मानने वाले उन तमाम लोगों को उस अंगार में फेंक देंगे। जो लोग बादशाह को खुदा मान लेंगे, बादशाह की इबादत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन लोगों को हम छोड़ देंगे। तो वो तरीका शुरू हो गया मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे सेक्टरों में बड़े बड़े खंदक खोद दिए गए, आग लगा दिया गया, लोगों को बुला बुलाकर पूछा गया कि तुम किसको मान रहे हो, बादशाह को अल्लाह मान रहे हो या नहीं? जो मान रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता था, जो नहीं मान रहे हैं वो दहकती हुई आग में जलने के लिए पसंद करते थे, उनको आग में ढकेल दिया। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह बुरूज में खंदक वालों के नाम से इन लोगों को याद कर रहा है, यानी खंदक खोद दिए, खंदकों में आग लगा दिया गया, एक औरत को वहां पर लाया गया जो एक अल्लाह को मान रही थी, जो उस बच्चे के तबलीग पर, उस बच्चे के कुर्बानी पर दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी, उस औरत को वहां पर लाया गया। औरत के गोद में शीरखार दूध पीता हुआ बच्चा था, छोटा सा बच्चा। वो औरत डर रही थी, वो औरत बादशाह को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो औरत आग में जलने के लिए तैयार है, मगर छोटे से बच्चे को लेकर कूदना पड़ रहा है।
बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे को छोड़कर अगर मैं अकेली चल जाऊं इस खंदक में, तो उस बच्चे को ये बादशाह क्या करेगा? मुशरिक बना देगा, अल्लाह नाफरमान बना देगा। अगर यहां बच्चे को जलने से मैं डर रही हूं तो जहन्नम में जलने का मौका हो सकता है। इस बादशाह के हाथ में मैं छोड़कर चला रहा हूं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों गौर कीजिए, अल्लाह का करना कैसा हुआ। अल्लाह ताला उस छोटे से शीरखार दूध पीते हुए बच्चे को जबान दे रहा है। वो बच्चा कह रहा है, अरे माँ तुम क्या देख रही हो? अल्लाह अकबर, छोटा सा बच्चा, चंद दिन का बच्चा जबान दे दिया अल्लाह ताला, अरे माँ तुम क्या देख रही हो? ये आग में सिर्फ एक मरतबा जलेंगे तुम, हमेशा के लिए हमारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है, मुझे लेकर कूद जाओ। अल्लाह अकबर, उस शीरखार दूध पीते हुए बच्चे को लेकर उस माँ ने उस आग के खंदक में कूद गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, कूद कर जलकर भस्म हो गई। अल्लाह अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिरकार आखिरी बात एक बात बता रहा हूं, आज ही से अपनी तबीयतों में, अपने मकानात में, अपने बीवी बच्चों में दीन इस्लाम की सही एक इनकलाब पैदा करें। उस बच्चे को जहां दफनाया गया था, कई हजारों साल, सौ साल के बाद उमर बिन खत्ताब की दौर खिलाफत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चल रहे थे। उमर बिन खत्ताब के दौर खिलाफत में, अल्लाह अकबर, उमर बिन खत्ताब जब बादशाह थे, उस वक्त कब्रिस्तान खोदने की जरूरत पेश आई। किसी जरूरत के तहत ये वो खबर खोदी गई जहां बच्चे को दफनाया गया था। वो बच्चा कई हजार साल के बाद भी ताजे का ताजा है, उसकी लाश ताजी की ताजी है, वो खून भी ताजे का ताजा, उसी वक्त तीर लगे जैसा वो खून बह रहा है, वो खून भी कच्चा है। वो बच्चा अपने कमरे की उंगली यहाँ पर रखा हुआ था, 100 साल पहले इंतकाल के वक्त वो उंगली उसी तरह थी। अल्लाह अकबर, उस मैयत को निकाल कर हैरान हो, परेशान लोग, कई 100 साल, हजारों साल पहले का कब्रिस्तान है, आज भी बच्चे की लाश ताजी की ताजी है। क्योंकि शहीद जो हुआ करते हैं अल्लाह के राह में, उनको मुर्दा ना कहो, ये दिन इस्लाम की तालीम है। वो शहीद था, अल्लाह ताला कीड़े मकोड़ों से, वो मिट्टी से उसको बचाया था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे बढ़कर, इससे और क्या वाकया होनी चाहिए? वाकया हम अपने आप को अल्लाह वाले बनाने के लिए, अल्लाह के लिए हमारी जिंदगी गुजारने के लिए, हमारे बीवी बच्चों में हम नसीहत करने के लिए, इससे बढ़कर और क्या वाकया होनी चाहिए? अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर से, जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू फी सिल्मी काफ़ा, अल्लाह ताला कह रहा है, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए अल्लाह ताला हमें आसानी फरमाए। अल्लाह ताला हक क्या है, ना हक क्या है पहचानने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर मरते दम तक इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ, जो नमाज जिस तरीके से पढ़ना जरूरी है, ईद की नमाज, उसी तरीके से गले मिलना भी जरूरी समझ रहे हैं लोग। ये कोई सुन्नत नहीं है, ये ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है। सुन्नत नहीं समझकर एक मोहब्बत बांटने के लिए अगर कोई मिल रहे हैं तो आप लोग मिलिए, आप लोग खुद एक नया इसको एनकरेज ना कीजिए, क्योंकि लोग इबादत समझ रहे हैं। अगर इबादत समझकर नया काम करेंगे तो बिदअत है। वो शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नए काम से बचते रहा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में हर नए काम से बचते रहा करो। हर नया काम बिदअत कहलाता है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो गले मिल रहे हैं हम अपने भाइयों से, ये कोई सुन्नत नहीं है, एक रिवाज है, वो बात अलग है। ये बात अपने दिलों में बिठा ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को एक और नेक बनाए, दिन की सही समझ अता फरमाए, मुकम्मल दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, अल्लाह के रसूल व असहाब नाम से ईद की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद साबित है, मगर गले मिलकर नहीं। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, क्या कहते थे अल्लाह के रसूल व असहाब किराम? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहकर अल्लाह के रसूल व असहाब किराम ईद की मुलाकात, लोगों की ईद की मुलाकात किया करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद की नमाज होती ही गले मिलना साबित नहीं
साहब कराम गले मिलते थे। अब जब कोई भाई गांव चले जाए, 3-4 दिन गुजर जाए गांव जाकर, वो वापस आया तो गले जरूर मिलते थे। उसका नामो निशान नहीं है हमारे में, हमें उसका नामो निशान नहीं है। कोई आदमी सऊदी जाकर 1-6 महीने के बाद भी अगर आ गया तो अस्सलाम वालेकुम और इस्लाम खैरियत से है, बस। गले मिलना कहाँ है? वो सुन्नत छूट गई है हमसे, जो साबित नहीं है उसको चालू करवा दे रहा है शैतान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।